Very good morning, students. I am your maths teacher. I will teach you in maths chapter 2, which is operation involving large numbers. The method of addition, subtraction, multiplication and division of large numbers are exactly the same as with smaller numbers. अब जिस तरह से हम छोटे नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करते हैं, सेम वही मेथड हम लार्ज नंबर के साथ भी करते हैं. देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज ए ऑफ पेज नंबर 23. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज ऐड. वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वी हैव हियर 3 numbers, this and this. First we write these numbers in columns like this, which I have already written on this paper. First one this, second and third. First we arrange these numbers in columns like this, first number, second number and then third number. After that we add these 3 numbers. Now add 8, 5 and 7 is 20, is 0, 0 and 2 carry over here. Now add all these numbers. 2 and 7 9, 9 and 9 18, 18 and 9 27, 7 right here and 2 carry over here. 2 9 11, 11 and 4 15 and 6 21, 1 here and 2 here. 2 and 6 8 and 3 11 and 3 14. Then write here 4 and 1 carry over here. 1 5 6, 6 and 7 13, 13 and 2 5 15 is 5 and 1 here. 1 and 2 3 and 9 12 and 2 and 1. 1 and 3 4 and 6 10, 0 here and 1 carry over here. Then add 1 and 1 2. Then write here 2. This is our answer. Then next question is in your book. Second question. This is our word problems. Now I explain you this question. In a city there are 2,50,754 men and this woman and this number is children. Then what we find? Find the total population of city. इसका मीनिंग ये है कि एक सिटी में इतने मैन हैं, इतने वुमेन हैं, इतने चिल्ड्रन हैं एंड हमें उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी है. देन हाउ वी राइट दिस प्रॉब्लम? लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट वी राइट स्टेटमेंट. नंबर ऑफ मैन equal to this number and number of women is equal to this number and number of children is equal to this number. Now we find total population. Then we add all these 3 numbers. Then add 4 and 6 and 6 16, 6 1, 6 and 7 13, 3 1, 1 7 8 13 and 5 18, 8 1, 1 and 3 4, 5 and 2 7 and 6 13, 3 and 1 carry here. 1 2 3 4 5 and 3 8. So we get total population of city is this number. Then write here 8 3 4 8 3 6. Then we find total population of the city is this 83 lakh 8,34,836. This is our answer. Now look in the book. Question number 6. All these questions you do yourself. Now 6th question is what must be added to the smallest 8-digit number to get the greatest 8-digit number?
इसका मीनिंग ये है कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर के साथ हमें कितना नंबर प्लस करना है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट वी राइट हियर look here, question number 6. First we write greatest 8 digit number is equal to 8 times 9 and smallest 8 digit number is equal to, first we write 1 then 70. फिर we find number, what number should be added, the number must be added is equal to, we subtract these two numbers, then subtract 9 minus 0 is 9, again 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 minus 1, 8. So what number we get? We get 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9. So we get, our answer is, the number must be added is equal to this number. This is our answer. Now again look in the book. Question number 7. The purchase of a company during the year 2006 was rupees this, and next year it increased by rupees this. What was the purchase of the company in the year 2007? And what was the total purchase of the company during these 2 years? इसका मीनिंग ये है कि एक कंपनी ने परचेज़ किया है 2006 में इतने रुपीज़ का, एंड नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज़, यानी वो बढ़ गया, उन्होंने जो परचेज़ किया था वो इंक्रीज़ हो गया। कितना इंक्रीज़ हो गया? रुपीज़ इतना एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो गया। तो हमें फाइंड करना है कि 2007 ने उस कंपनी ने कितना परचेज़ किया, उसके बाद टोटल परचेज़ ऑफ ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, तो दोनों साल का उन्होंने कितना टोटल परचेज़ किया। तो हमें 2 चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 2007 ने उन्होंने कितना परचेज़ किया। तो फर्स्ट वी राइट हियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइक दिस। फर्स्ट वी राइट द परचेज ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग 2006, यानी 2006 में उन्होंने कितना परचेज़ किया ऑफ रुपीज़ दिस नंबर, एंड नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय, नेक्स्ट ईयर वो इंक्रीज़ हो गया था यानी बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था? बाय दिस नंबर। देन वी परचेज ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग 2007, क्योंकि 2007 में इंक्रीज़ हो रहा है तो इस नंबर को हमें इसके साथ ऐड करना है, प्लस करना है। सो देयरफॉर वी ऐड दीज नंबर्स 4 and 7, 11, 1 carry, 6, 7 and 4, 11, 1 carry over here, 5, 10, 0, 1 carry, 1 and 9, 10, again 0, 1 carry, 4 and 8, 12, 2, 1 carry, 3 and 3, 6 rupees. We get in 2007 a company purchase rupees this, इतने रुपए का उन्होंने 2007 में टोटल उन्होंने परचेज़ कर लिया। देन आफ्टर दिस वी फाइंड टोटल परचेज ऑफ ड्यूरिंग 2 ईयर्स, यानी दोनों साल का उन्होंने कितना परचेज़ किया। तो वी नो द परचेज ऑफ ड्यूरिंग 2006 and we get purchase of a company during 2007 also. Then these numbers and this number we add here. So first we write total purchase during these 2 years equal 2006 में उन्होंने कितना परचेज़ किया वो हमने यहाँ लिख लिया। अब 7 का हमारा कितना आंसर आया?
दिस रुपीज़, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 1 7 1 0 0 2 and 6. Then we add 4 and 1 5 5 6 12 1 9 4 0 3 and 2 5 2 and 6 8 means rupees. So we get the answer. Total purchase during these 2 years rupees this. So we get 2 answers in this questions. Answer first rupees in 2007 this लिखेंगे, and second thing rupees total 2 years का परचेज, this is our answer. Now again I left this questions, you do yourself. And next exercise, open exercise on page 25, exercise B. Find the difference. फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है जैसे हम कॉलम अरेंज किया हुआ है, हमें इन्हें माइनस करना है। देखिए 4 - 5, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, देन हम बोरो करेंगे, तो वी बोरो फ्रॉम 5, वी गेट हियर 4 एंड हियर 14, देन 14 - 5 9, 4 - 3 1 एंड 2 में 5, 2 से माइनस नहीं होगा 5, अगेन हम बोरो करेंगे, यहाँ से यहाँ 0, यहाँ 12, तो 12 - 5 7, 0 में से अगेन 9 माइनस नहीं होगा, अगेन बोरो करेंगे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से बोरो करेंगे, वी गेट हियर 6, हियर 9 एंड हियर 10, 10 - 9 1, 9 - 0 is 9, 6 - 6 0, 6 - 5 1. This is our answer. Now look at this question. Find the difference. इन्हें भी हमें सबसे पहले इन नंबर्स को कॉलम में, जैसे ये अरेंज किए हुए हैं, कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद हम इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज बी, ये 2 नंबर्स हैं, इन्हें हमने पहले कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद हम इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। देन माइनस 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, वी कैरी, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये यहाँ से पहले बोरो करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो गए 10, अब ये यहाँ से बोरो करेगा, यहाँ हो जाएंगे 14, यहाँ हो जाएंगे 9, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, 9 - 1 8, 6 - 8 नहीं होगा, 6 यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ हो जाएंगे 16, 16 - 8 8, 5 - 7 नहीं होगा, अगेन यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 15, 15 - 7 is 8, 1 में से 4 माइनस होगा नहीं, तो अगेन यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 7, यहाँ 11, 11 - 4 7, 7 - 9 नहीं होगा, फिर यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 17, 17 - 9 is 8 and 6 - 3 is 3. This is our answer. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, प्रैक्टिस करिए आप। Now come to the exercise C on page number 26. Question first is, by how much is this less than this number? मतलब ये नंबर हमारा इस नंबर से लेस मीन्स छोटा, कि ये नंबर हमारा इस नंबर से कितना लेस है, कितना छोटा है या कितना कम है। तो हाउ वी गेट दिस आंसर? फर्स्ट वी राइट
सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, दिस नंबर। ये कम है यानी छोटा है, तो इससे कितना छोटा है, तो ये बड़ा हुआ। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो बड़ा नंबर है उसे हम पहले ऊपर लिखेंगे, फिर जो छोटा नंबर है दिस नंबर वी राइट हेयर एंड देन माइनस। 8 - 9 नहीं होगा, बोरो करेंगे। हेयर 18 एंड हेयर 0। 18 - 9 इज 9। अगेन यहाँ से हम बोरो करेंगे 3 एंड हेयर 10। 10 - 5 5। 3 - 8 नहीं होगा, यहाँ से 5। अगेन 13 13 - 8 5। 5 - 7 नहीं होगा, अगेन बोरो करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 15। 15 - 7 8। 0 - 3 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, पहले ये यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 10। फिर यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 - 3 इज 7 एंड 9 - 4 इज 5। 6 - 6 is 0. So our answer is this. Then how we write this answer? This number is less than this by. यानी ये नंबर इस नंबर से छोटा है। by मीन्स कितना छोटा है, तो this number 5 7 8 5 5 9. This is our answer. यानी ये नंबर इस नंबर से इतने नंबर छोटा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दिस ओनली वंस। इसका मतलब है कि हमें डिफरेंस निकालना है इनके बीच में, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जो डिजिट हमें गिवन है उन डिजिट से सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट हेयर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज सी। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट वी राइट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता है तो जो ग्रेटर डिजिट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे लोअर की तरफ, तो ये नंबर हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। इसी तरह से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा दिस। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, देन डिफरेंस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन सब्ट्रैक्ट वही मेथड है आपका, कैरी लिया हमने 10 हेयर 1, 10 - 9 1 नहीं, कैरी यहाँ से लिया 11 यहाँ 3, 11 - 7 4। अगेन यहाँ से बोरो किया 13 13 - 5 8। 4 - 4 0। 7 - 0 7। 9 - 2 is 7. तो what difference we get? We get 7 7 0 8 4 and 1. This is our answer. Now again see question number 6. What must be added to the smallest 8 digit number to get the greatest 8 digit number? यानी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर के साथ हमें कितना नंबर प्लस करना है, ऐड करना है, देन वी गेट ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो हाउ वी डू दिस क्वेश्चन? लुक फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन नंबर 6 ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर means 8 times 9 and smallest 8 digit number, then 1 and 7 0. Then we find what number must be added. Then right here number must be added is equal to, we subtract these two numbers. Again subtract this 9 9 9 9 9 9 9 and 8. Then we get number 8 and 9 9 9 9 9. How many nines? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. This is our
answer. It means this number must be added to the smallest number, then we get greatest 8 digit number. यानी कि ये नंबर जब हम स्मॉलेस्ट में प्लस करेंगे तो हमें ये लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. लुक इन द बुक. द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस. इफ वन ऑफ नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर. इसका मतलब ये है कि जब हम टू नंबर्स को प्लस करते हैं तो उनका आंसर ये आता है, और उन दो नंबर में से हमें एक नंबर हमें मालूम है, वो है हमारा ये नंबर यानी दिस नंबर. देन वी फाइंड अदर यानी जो दूसरा नंबर है वो हमें निकालना है. तो कैसे हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट वी राइट हियर सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू दिस and given one number is this, and we find other number, then we subtract these two numbers, then start subtract. Again we borrow 4 and 10. 10 minus 5 5, 4 minus 4 0. Again we borrow here 10 and 3. 10 minus 3 7. Again borrow 13 minus 4 is 9, and 9 minus 2 7. 5 minus 1 4, and 1 carry again 2 1. 11 minus 8 3, and here 2. So we get other number is equals to 2 3 4 7 9 7 0 5. This is our answer. Now question number 9. Again see in the book. An election was contested by two candidates. The winning candidates received this vote and won by a margin of this vote. How many vote did the another candidate receive? मतलब इलेक्शन में टू कैंडिडेट्स हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इतने वोट रिसीव किए, लेकिन ये जो उन्होंने वोट रिसीव किए थे वो इतने मार्जिन यानी इतने वोट उन्हें एक्स्ट्रा मिले थे उनको जीतने के लिए. तो हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी वोट्स जो अदर कैंडिडेट है जो लूज़र है उसे कितने वोट रिसीव किए उन्होंने. तो वी राइट हियर लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. First we write winning candidate receive vote is equal to this. He won by margin vote. कितने मार्जिन वोट से उन्होंने वो जीते थे, तो इतने वोट मार्जिन थे उन्होंने, उनके एक्स्ट्रा थे. तो the other candidate receive vote, we subtract these numbers. Again we subtract 13 3 again 9. 13 minus 6 7. 9 minus 1 8. 3 नहीं होगा, यहाँ से मैं कैरी लिया 1. 13 minus 5 8. अगेन कैरी लेंगे 11 minus 3 8. 6 minus 8 नहीं होगा, फिर बोरो करेंगे 7 and 16. 16 minus 8 is 8. 7 minus 9 नहीं होगा, फिर बोरो करेंगे हम 5 या 17. 17 minus 9 is 8 and 5 is right here. So we find other candidate receive votes is equals to 5 times 8 and 7. यानी जो लूज़र कैंडिडेट्स था उन्हें इतने वोट रिसीव किए उन्होंने. तो दिस इज आवर आंसर. Now last question of this exercise, question number 10. Subtract the sum of this number and this number from the sum of this number and this number. From का मतलब ये होता है कि जो आगे का नंबर है इसमें से हमें ये नंबर माइनस करना है, बट हमें यहाँ पे सम करना है.
first we do sum of these two numbers and these two numbers. So we write here question number 10 like this. Question number 10, first we write sum of these two numbers. We write here these two numbers, then we add 6 and 9, 15, 5, 1, 15, 11, 1, 9, 6 and 4. We get this sum. Again we sum these two numbers. Now write here sum of these two numbers. Again we sum 12, 1, 17, 1, 15, 1 carry, 13, 11, 1 carry, 9 and 6. We get two sums, this and this. फ्रॉम द सम ऑफ, यानी इनका जो सम था, यानी हमने जो बाद में सम किया है, इसमें से हमें ये सम माइनस करना है. इस नंबर में से हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. तो फर्स्ट वी राइट दिस नंबर एंड देन दिस नंबर, देन सब्ट्रैक्ट राइट हियर एंड राइट हियर 6, 9, 1, 3, 5, 7, 2 and under this number 5, 5, 3, 1, 9, 6 and 4, then minus. Again we take borrow. 12 minus 5, 7, 6 minus 5, 1, 5 minus 3, 2, 3 minus 1, 2, 1 minus 9, no, we take borrow. 11 minus 9, 2, 8 minus 6, 2 and 6 minus 4 is also 2. Then we get answer is equals to 2, 2, 2, 2, 2, 1, 7. This is our answer. Now your exercise is over. Today we stop up to here. Thank you. Have a nice day.